Good morning, student. Today I will teach you about the infectious disease of the heart. So, firstly, I will start from the introduction. So, infectious disease of the heart consists of three parts, that is endocarditis, second one is myocarditis, and third one is pericarditis. So first of all, I will tell you about the layers of the heart. So first one is endocardium, members that lines inside the chambers of the heart and form the surface of the wall is called endocardium. That means it is the inner layer of the heart. Next one is the myocardium. It is the middle layer of the heart, that is consist of muscular tissue. Third one is the pericardium layer. Pericardium layer, it is a membrane which enclosing the heart and it is the outer layer of the heart. So here the three layers of the heart: endocardium, myocardium and the pericardium. If inflammation occurs in the endocardium, that is called endocarditis. If inflammation occurs in the myocardium, that is called myocarditis. And if inflammation occurs in the pericardium layer, that is called pericarditis. So first we will discuss the endocarditis. So endocarditis, the definition is, it is an inflammation of the inner layer of the heart, that is endocardium. That means inflammation of the endocardial layer is called endocarditis. Second thing is that it usually involves the heart walls. In this disease, mainly heart walls are involved. It is characterized by a lesion which is called vegetations. So, the term vegetation which is used for a lesion which is formed in the inflamed layer of the endocardium. This occurs when bacteria or other germs from another part of your body, such as mouth, is spread through your bloodstream and attached to the damaged area in the heart. So first of all, any type of infection due to any type of bacteria or germs occurs in the other part of the body, that it is spread in the heart wall through the bloodstream. So overall inflammation of the endocardium layer is called endocarditis. Next one is risk factor. There are so many risk factors, so I will deal one by one. First one is artificial heart wall. Germs are more likely to attach to an artificial, that is called also prosthetic heart wall, than to a normal heart wall. If person having any artificial heart walls, means if person original heart wall is damaged and after the surgery person having artificial heart wall, so there is a more chance to get the endocarditis, means the infection of the endocardium layer. Second one is congenital heart defect. If you were born with the certain type of heart defect, such as an irregular heart or abnormal heart walls, your heart may be more susceptible to infection. Because of the congenital heart defect, there is also chance of getting endocardial infection. Next one is a history of endocarditis. Endocarditis can damage tissue, heart tissue and wall and increase the risk for a future heart infection. Next risk factor is damaged heart wall. Certain medical conditions like rheumatic fever, which I have already told you in earlier classes, like in rheumatic heart disease. So in case of rheumatic fever or any type of infection can also damage or scar one or more of your heart walls, and it also make more prone to get the endocardial infection or inflammation, that is called endocarditis. A history of intravenous illegal drugs, like people use illegal drug like injecting them, are at a greater risk of endocarditis. The needle used to inject the illegal drugs can also be contaminated with the bacteria,
कैन कॉज एंडोकार्डाइटिस। कुछ जो पर्सन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ड्रग एडिक्टेड होते हैं, तो वो बहुत सारे टाइप्स के जो इलीगल ड्रग्स हैं जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं उनको अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो वो जो इंजेक्शंस होते हैं समटाइम्स उसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, तो जिसकी वजह से वो हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं। देन जो पर्सन है उसको चांसेस होते हैं कि उसको एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट इज कॉज। सो फर्स्ट कॉज इज एवरीडे ओरल एक्टिविटी सच एज ब्रशिंग योर टीथ, other activity that could cause your gums to bleed can allow bacteria to enter your bloodstream, especially if you doesn't floss or your teeth or gums are not healthy। कभी कभी क्या होता है, जो रूटीन एक्टिविटी जैसे हम अपने टीथ को क्लीन कर रहे हैं, हमने बहुत तेज़ी से ब्रशिंग कर ली और बहुत हार्शली ब्रश कर लिया, तो उसके वजह से क्या होता है, कई बार हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ब्लीड करने लगती है, तो जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं उसके लिए वहाँ पे बहुत अच्छा एक इन्वायरमेंट हो जाता है जिससे कि वो वहाँ पे इन्फेक्शन है उसको प्रोड्यूस कर सके और साथ ही साथ होल बॉडी में इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सके। नेक्स्ट वन इज an infection or other medical condition. Bacteria may spread from an infected area such as a skin sore. Other medical condition like gum disease, any disease related to gum, sexually transmitted disease, any type of intestinal disease such as inflammatory bowel disease can also give bacteria to the opportunity to enter into the blood supply and spread the heart wall. Some dental procedure that can cut the gums may also allow the bacteria to enter the bloodstream and infect the endocardium layer of the heart and cause endocarditis. Sometimes catheters like bacteria can enter into the body through a catheter, a thin tube that doctors sometimes use to inject or remove the blood from the body. This is more likely to occur if the catheter is not in the place for the long time. मतलब अगर कोई एक कैथेटर है जिसको अगर हमने पेशेंट में यूज़ किया है काफ़ी लंबे समय तक के लिए और हमने उसको रिप्लेस नहीं किया है, प्रॉपर क्लीन नहीं किया है, तो उसके थ्रू भी जो बैक्टीरिया है वो ईजिली हमारे बॉडी में इंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज निडल यूज्ड फॉर द टैटू एंड बॉडी पियर्सिंग। द बैक्टीरिया दैट कैन कॉज एंडोकार्डाइटिस कैन ऑल्सो इंटर योर ब्लड स्ट्रीम थ्रू द निडल यूज फॉर द टैटू और बॉडी पियर्सिंग। आजकल बहुत जैसे चलन में है कि क्या करते हैं लोग, जो बॉडी है उस पर टैटू बनवाते हैं या फिर अपने बॉडी के पार्ट्स को पियर्स मतलब होल छेद करते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारे बॉडी में पेनिट्रेशन होता है स्किन में, जिसके थ्रू बैक्टीरिया ईजिली हमारे ब्लड में एंटर कर सकते हैं and they cause infection. Next one is intravenous illegal, same जैसे कि मैंने रिस्क फैक्टर में बताया. So next one is pathophysiology, how the endocarditis will occur in our body. So firstly, organism travels in the blood stream. सबसे पहले क्या होगा, ड्यू टू ऑल द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स द ऑर्गेनिज्म ट्रेवल्स इन द ब्लड स्ट्रीम, उसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करने लगा. नेक्स्ट, दे अटैच टू द एंडोकार्डियल लाइनिंग ऑफ अ नॉर्मल हार्ट और एन एरिया ऑफ द डिफेक्ट. मतलब कि अब बैक्टीरिया सबसे पहले क्या हुआ, हमारे जो ब्लड स्ट्रीम ब्लड फ्लो के थ्रू क्या हुआ, ट्रैवल करते हुए आया और नेक्स्ट उसने क्या किया, अटैच टू द एंडोकार्डियल लाइनिंग ऑफ द नॉर्मल हार्ट, और हार्ट की जो एंडोकार्डियल लाइनिंग है वहाँ पे जाके अटैच हो गया. देन इट कॉज वेजिटेशन. वेजिटेशन मीन्स लेशन फॉर्म कर रहा है, लेशन फॉर्म कर रहा है. लेशन का मतलब यहाँ पे क्या समझ सकते हैं, जैसे किसी भी जगह पे जैसे कोई भी एक प्लेस है वहाँ पे कई लेसरेशन हो जाना या फिर किसी भी वजह से एब्रेशन होना है ना, दैट कॉल्स वेजिटेशन. सो इट फॉर्म द वेजिटेशंस इन फॉर्म ऑफ लाइक एनी टाइप ऑफ ग्रुप और कॉलोनी ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट. मतलब किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट की ग्रुप या किसी भी कॉलोनी को हम वेजिटेशन कह सकते हैं जो आफ्टर लेसरेशन हो सकता है. तो यहाँ पे क्या है, इट फॉर्म्स द लेसरेशन वेजिटेशन. तो सबसे पहले बैक्टीरिया
ट्रेवल करते हुए हार्ट में आता है। हार्ट में कहाँ पे आ रहा है, वो जो एंडोकार्डियल लाइनिंग है, एंडोकार्डियल लेयर है, वहाँ पे वो अटैच हो गया। नेक्स्ट उसने क्या किया, इट फॉर्म्स द वेजिटेशन, उसने बैक्टीरियाज, फिब्रिन, सेलुलर डेब्रिस, जो सेल्स डेथ हो गए और साथ ही साथ प्लेटलेट्स, ये सभी के अलग अलग क्लम्प्स या हम कह सकते हैं ग्रुप्स बना लिए। नेक्स्ट यहाँ पे दो चीज़ें हो रही, फर्स्ट ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन ऑन द हार्ट वॉल्स, ये जो भी उसने क्लम्प्स बनाया है बैक्टीरिया का या फिब्रिन्स का या अदर सेल डेड सेल्स का, वो धीरे धीरे हार्ट की जो वॉल्स है उसके वहाँ के साइड पे धीरे धीरे वो ग्रोथ कर रहे हैं। अदर साइड पे क्या हो रहा है, इन्फेक्टेड जो क्लॉट है, क्लॉट का जो क्लम्प बनाया है, क्लॉट का जो ग्रुप बन गया है एक, वो धीरे धीरे क्या है, वो ब्रेक फ्री है, मतलब वो टूटता नहीं है और साथ ही साथ इट ट्रेवल इट टू द ब्लड स्ट्रीम। तो जो इन्फेक्टेड क्लोट है वो ब्रेक फ्री है। ब्रेक फ्री का मतलब यहाँ पे वो डिजोल्व नहीं हो पा रहा है और वो ब्लड के थ्रू ट्रेवल कर रहा है आगे। नेक्स्ट, इट विल कॉज द एम्बोलाई दैट कैन लॉस थ्रू द वेरियस ऑर्गन एंड लाइक इन किडनी, कोरोनरी आर्टरी, स्प्लीन, लंग्स एंड ब्रेन। और जो इम्बोलाई है यानी कि इम्बोलस यानी कि जो ब्लड का क्लॉट है वो धीरे धीरे सभी को लॉक्ड करता जा रहा है, जितने भी ऑर्गन्स है लाइक किडनी, कोरोनरी आर्टरी, स्प्लीन, लंग्स एंड ब्रेन, एंड विच ऑब्स्ट्रक्ट द ब्लड फ्लो एंड प्रोड्यूस द ऑर्गन डैमेज। जैसे जैसे ये एम्बोलाई है जहाँ जहाँ जिस भी ऑर्गन के ब्लड फ्लो को ब्लॉक करता जाएगा, तो ये आगे चल के क्या होंगे, वो जो ऑर्गन्स है जहाँ पे ब्लड का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है वो ऑर्गन्स डैमेज होने लगेंगे। अदर साइड पे हम जहाँ देखते हैं कि जहाँ पे हार्ट की जो वॉल्स है वहाँ पे ग्रोथ हो रहा है वेजिटेशन का, यानी कि बैक्टीरियाज के जो ग्रुप है उनका क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। दे फर्दर डिफॉर्म्स थिक एंड स्टिफन परफोरेट द वॉल्स लीफलेट। वॉल्स लीफलेट का मैंने बताया था कि हमारे हार्ट में बहुत सारे वॉल्स होते हैं, सेमिलूनर वॉल्स होते हैं, मिट्रल वॉल्स होते हैं, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड। तो सभी वॉल्स के क्लोज होने और ओपन होने के लिए उसमें कप्स बने होते हैं, कस्प बने होते हैं, दे कॉल्ड लीफलेट्स। तो यहाँ पे जो वेजिटेशंस की वजह से क्या होता है, जो वॉल्स है वो बहुत ज़्यादा थिक, स्टिफ हो जाते हैं, बिल्कुल रिजिड, और साथ ही साथ परफोरेट मतलब कि उनमें परफोरेशन होल हो जाता है, परफोरेट द वॉल लीफलेट एंड दैट कॉज डिसफंक्शनल हार्ट वॉल। इसकी वजह से जो हार्ट के जो वॉल्स है वो डिसफंक्शनल हो जाती है, यानी कि उनका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। सो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एंडोकार्डाइटिस। Next one is clinical feature. So first one is paleness, skin is looking pale. Next one is persistent cough. persistent का मतलब होता है लगातार या कंटिन्यूस, तो पेशेंट को कंटिन्यूस कफिंग होगी। नेक्स्ट, ब्लड इन यूरिन। नेक्स्ट वन इज अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, इनलार्ज्ड स्प्लीन, स्प्लीन बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाएगा, स्वेलिंग इन द फीट, लेग्स, एडिमा। नेक्स्ट वन इन इन्फेक्शन, पेशेंट में हैविंग फीवर, चिल्स, नाइट स्वेट, मेलाइसी, मेलाइसी मीन्स फीलिंग ऑफ द इलनेस, फैटिक, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट। नेक्स्ट वन इज कार्डियक मर्मर। कार्डियक मर्मर जैसे कि मैंने बताया था S3 एंड S4 जो गैलोप साउंड होते हैं, दे आर कॉल्ड कार्डियक मर्मर। तो ये एबनॉर्मल हार्ट साउंड हमको पेशेंट में सुनने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज टैकीकार्डिया, दैट इज इंक्रीज हार्ट रेट एंड एडवांस साइन ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। आगे हम पढ़ेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो इसके साइंस एडवांस स्टेज में हमको दिखाई देंगे। अदर पेरिफेरल मैनिफेस्टेशन, फर्स्ट वन इज petechiae. So it is a small pinpoint hemorrhage in conjunctiva that in or in mucous membrane, neck and ankles. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स है, आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। सो दैट इज पटेकिया। यहाँ पे आप देखेंगे जो रेड ये जो पैचेस हैं वो आपको दिखेंगे, तो ये कंजक्टाइवा में है, ये स्किन में भी हो सकता है, नेल्स में भी हो सकता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में भी ये दिख सकता है। नेक्स्ट वन इज स्प्लिंटर हेमरेज, स्मॉल डार्क लाइंस अंडर द फिंगर नेल्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फिंगर्स है उसके नीचे स्मॉल डार्क लाइन बने हुए ब्लैक, तो दिस इज कॉल्ड स्प्लिंटर हेमरेज। नेक्स्ट वन इज ऑस्लर नोट्स, रेड पेनफुल नोट्स विद अ वाइट सेंटर ऑन द पैड्स ऑफ द फिंगर्स, टोज, पाम्स और द सोल्स, अ लेट साइन ऑफ इन्फेक्शन। क्या होगा, रेड और पेनफुल मतलब पेन रहेगा पेशेंट को, ऐसे नोट्स फॉर्म होंगे इन द वाइट सेंटर ऑन द पैड्स ऑफ द फिंगर। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये हो गया ऑस्लर नोट्स, और ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहेंगे, साथ ही रेड कलर इनका जो रहेगा अपीयरेंस रहेगा। नेक्स्ट वन इज
जेनवेलेशन इट इज़ अ फ्लैट पेनलेस, ये पेनलेस होंगे मतलब इसमें पेन नहीं होगा। रेड टू ब्लूइश रेड स्पॉट, ये इनका लुक कैसा होगा, अपीयरेंस रेड टू ब्लूइश रेड स्पॉट ऑन द पाम एंड द सोल। इट इज़ एन अर्ली साइन ऑफ एंडोकार्डियल इन्फेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इज जेनेवेलेशन। तो ये जो चीज़ है, जो ये वाला आपको फर्स्ट वाला जो लेशन दिख रहा है जेनेवेलेशन, ये आपको अर्ली इन्फेक्शन मतलब पेशेंट को एंडोकार्डियल लेयर में इन्फेक्शन होना स्टार्ट हुआ तो आपको ये क्लिनिकल फीचर्स दिखेगा। तो ये साइन है अर्ली इन्फेक्शन का। और अगर हम ऑस्लर नोट की बात करते हैं तो दिस इज अ साइन ऑफ लेट इन्फेक्शन, तो ये आपको बाद में दिखेगा और ये आपको पहले दिखाई देगा। Next one is Roth's spot, boat-shaped retinal hemorrhage near the optic disc seen in fundoscopy. Fundoscopy, it is also called the ophthalmoscope to examine the eye. स्कोप का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के लिए अगर जैसे कि स्कोप का मतलब है कि किसी भी ऑर्गन टिश्यू या किसी भी चीज़ को देखने के लिए हम जो भी एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। एंड फंडोस्कोप, फंडस यहाँ पे आई के लिए यूज़ किया गया, सो इट इज़ कॉल्ड फंडोस्कोपी। तो इसमें हम आई के एग्जामिनेशन के लिए फंडोस्कोप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे रॉथ स्पॉट का आप डायग्राम देख सकते हैं जैसे कि ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये एरो बना हुआ है, रेड स्पॉट दिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रोस स्पॉट। तो ये भी आपको क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेगा। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन ऑफ द एंडोकार्डाइटिस, रॉथ स्पॉट, स्प्लिंटर हेमरेज, ऑस्लर नोट्स, जेनेवेलेशन एंड पेटेकियाई। सो दीज 5 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर ऑफ द एंडोकार्डाइटिस। नेक्स्ट वन इज एम्बोलिक मैनिफेस्टेशन। एम्बोलिक मैनिफेस्टेशन में उसमें क्या हो सकता है, लंग्स में हीमोप्टाइसिस मीन्स ब्लड इन द स्पूटम, पेशेंट हैविंग चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, किडनी अफेक्ट हो सकती है इन दैट ब्लड इन द यूरिन, दैट इज कॉल्ड हेमेचूरिया। Next one is in heart, myocardial infarction is also present, and if brain is affected, that cause the damage of the optic nerve and cause sudden blindness, paralysis. Next one is meningitis, inflammation of the meninges of the brain, and last one is brain abscess, brain में abscess हो जाएगा. So these all are the clinical features of the endocarditis. Next one is test and diagnosis. How we will diagnose the patient, कैसे हम डायग्नोज करेंगे कि पेशेंट को एंडोकार्डाइटिस है. सो फर्स्ट वन इज वी विल टेक द हिस्ट्री. सबसे पहले हम हिस्ट्री लेंगे. हिस्ट्री में जितने भी कॉसेस है, रिस्क फैक्टर जो भी हमने पढ़ा, सभी के बारे में हमको पेशेंट से पूछना है. इफ़ दे आर हैविंग एनी आर्टिफिशियल वॉल, इफ़ दे आर हैविंग एनी टाइप ऑफ हार्ट डिसीज, एनी टाइप ऑफ यूजिंग एनी टाइप ऑफ इलीगल ड्रग्स, है ना, या फिर उनको किसी भी तरह का डेंटल प्रोसीजर हुआ है क्या, तो ये सारी चीज़ें हमको पूछनी है. प्रीवियस उनको एंडोकार्डाइटिस हो चुका है, इफ़ दे हैव प्रीवियस एनी टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, है ना, तो ये सारी चीज़ें हमको हिस्ट्री में पूछना है. नेक्स्ट वी विल परफॉर्म द फिजिकल एग्जामिनेशन. फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको सारे वो क्लिनिकल फीचर्स आपको देखने हैं जो भी मैंने जो इंपॉर्टेंट साइन बताया, लाइक पटेकियाई एंड स्प्लिंटर हेमरेज, ऑस्लर नोट्स, जेनेवे sign and Roth spot. Next beside this we will perform other tests also, like laboratory test. In laboratory test, firstly we will perform the blood culture to see the level of the WBC हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा. जितना ज़्यादा बॉडी में हमारी इन्फेक्शन होता है, WBC का लेवल उतना ही ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है. नेक्स्ट कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC चेक करेंगे, पेशेंट का RBC चेक करेंगे. नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइट चेक करेंगे. इलेक्ट्रोलाइट क्यों चेक करना है, क्योंकि इस एंडोकार्डाइटिस में आपको पेशेंट का जो रीनल सिस्टम है वो भी अफेक्टेड मिलेगा. एंड इसमें क्या होगा, नेक्स्ट वन इज क्रिएटिनिन एंड बुन लेवल. जो क्रिएटिनिन एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, BUN, दैट इज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन. तो क्रिएटिनिन और बुन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट दूसरी चीज़ क्या होगी, किडनी का फंक्शन डिमिनिस्ड हो जाएगा. किडनी का फंक्शन डिमिनिस्ड हो जाने की वजह से क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा. नेक्स्ट वन इज ग्लूकोज का क्या होगा, यहाँ पे बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की डिमांड होगी, पेशेंट हैविंग फैटिग. नेक्स्ट वन इज कोगुलेशन पैनल. पेशेंट का देखना है कि कोगुलेशन कितना ज़्यादा है और पेशेंट का ब्लड फ्लो कितना ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है. नेक्स्ट वन इज ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट. So it is ESR. Next one is CRP, C-reactive protein. So C-reactive protein, it is produced in the liver and it is
इट इज़ इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू द इन्फ्लामेशन। जैसे जैसे हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है वैसे वैसे ESR और सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो ये भी हमको चेक करना है। नेक्स्ट वन इज इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी, we will use the echocardiography to produce the sound waves of the heart. Next we will perform the chest x-ray. chest x-ray क्यों करेंगे? हमको ये देखने के लिए कि कितना ज़्यादा इन्फ्लामेशन है हार्ट के जो वॉल्स हैं उनका आउटर स्ट्रक्चर एग्जामिन करने के लिए। नेक्स्ट वी विल परफॉर्म द ट्रांस ईसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम। ट्रांस ईसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ echocardiogram. It also produce the images of the heart and the blood vessels. So these all are about the test and diagnosis. Next is complication. What are the complication of the endocarditis? So first complication, that is damage heart wall, that increase the risk of heart failure. If patient having endocarditis, then it will cause further the damage of heart wall and further it increase the chance of getting heart failure. Next one is if heart rhythm are affected, arrhythmia or irregular heartbeat may occur. ऑब्वियस सी बात है कि पेशेंट के अगर हार्ट वॉल डैमेज हो रहे हैं तो प्रॉपर यहाँ पे क्या होगा, ब्लड की जो फीलिंग है और ब्लड जो हार्ट के जो चैम्बर्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, तो जो हार्ट का रिदम है वो इरेगुलर हो जाएगा. सो ऑल्सो देयर इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ arrhythmia. Next one is the infection can spread within the heart and to the other organs like kidney, lungs and brains. Next, if vegetation break off, they can travel through the bloodstream to the other part of the body and cause infection and abscess elsewhere. Vegetation जैसे मैंने बताया था कि वेजिटेशन किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया है उनका क्लम्स हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, या फिर क्लॉट्स का ग्रुप हो सकता है किसी भी तरह का, तो या फिर जो डेड सेल्स है उनका ग्रुप हो सकता है. तो अगर ये ब्रेक ऑफ यानी कि अगर ब्रेक होता है वो, तो क्या हो सकता है, वो अगर जो वेजिटेशंस है वो कंटिन्यू ब्लड फ्लो के थ्रू अदर ऑर्गन में जाएगा और उनमें ब्लड फ्लो को ब्लॉक करके साथ ही साथ वो क्या कॉज करेगा, मल्टीपल ऑर्गन डैमेज. नेक्स्ट वन इज ट्रीटमेंट. सो फर्स्ट वन इज प्रोफाइलिक ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट ऑफ एंडोकार्डाइटिस. सो फर्स्ट वन इज रिमूवल और ड्रेनेज ऑफ द इन्फेक्टेड टिश्यू. सबसे पहले चीज़ क्या करेंगे, हम पेशेंट का जो इन्फेक्टेड टिश्यूज को ड्रेन करेंगे और रिमूव करेंगे. नेक्स्ट वन इज रीनल डायलिसिस. रीनल डायलिसिस यहाँ पे क्यों करना है, क्योंकि पेशेंट का जो रीनल सिस्टम है वो भी अफेक्ट हो गया है और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो क्रिएटिनिन का लेवल है और जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है. तो हमको डायलिसिस के थ्रू जितने भी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट है उनको रिमूव करना है. नेक्स्ट वन इज एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रिवेंट फ्रॉम द फर्दर कॉम्प्लिकेशन एंड फर्दर इन्फेक्शन एंड टू ऑल्सो इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन. पेशेंट की बॉडी में जो इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करने के लिए, उससे आगे प्रिवेंट होने के लिए हमको पेशेंट को एंटीबायोटिक देना है. तो फर्स्टली ये चेक करना है, मॉनिटर द एंटीबायोटिक सीरम लेवल कितना है पेशेंट की बॉडी में, ब्लड कल्चर्स उसके रूटीन चेक करने हैं, रीनल फंक्शन देखना है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन का लेवल देखना है, एंटीबायोटिक थेरेपी देना है. इफ पेशेंट हैविंग फीवर देन वी विल गिव द इब्रूफेन और एनी टाइप ऑफ अदर एंटीबायोटिक ड्रग्स. एंड देयर इज ऑल्सो वन सर्जिकल मैनेजमेंट, दैट इज अर्ली वॉल्व रिप्लेसमेंट. अगर पॉसिबल है तो हम पेशेंट को आर्टिफिशियल वॉल्व रिप्लेस कर सकते हैं. Next one is medical intervention. So firstly we will identify the infectious organism through the help of blood culture. सबसे पहले हम कल्चर टेस्ट करेंगे जिससे हमको पता चल जाएगा कि कौन सा इन्फेक्शियस एजेंट है जिसकी वजह से पेशेंट को एंडोकार्डाइटिस हुआ है. नेक्स्ट वी विल डिस्ट्रॉय द इन्फेक्शियस एजेंट, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द वल्वर वेजिटेशंस. जो हार्ट के वॉल्स के साइड पे जो वेजिटेशंस में ग्रोथ हो रही है, यानी कि बैक्टीरिया में ग्रोथ हो रहा है या डेड सेल्स का ग्रुप है उसमें ग्रोथ हो रहा है, हम उसको डिस्ट्रॉय करेंगे बाय द गिविंग द IV एंटीबायोटिक्स. मतलब हम इंट्रावीनसली एंटीबायोटिक 4 to 6 वीक्स के लिए एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट को, लाइक पेनिसिलिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स,
टू इंश्योर द हाई ब्लड लेवल ऑफ मेडिकेशन। IV क्यों एडमिनिस्टर करना है? ताकि हम इंश्योर हो सके कि पेशेंट को हाई ब्लड लेवल्स ऑफ मेडिकेशन, मतलब पेशेंट को हम एक अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं ब्लड के थ्रू, जिससे कि जो इन्फेक्शन है वो प्रिवेंट हो सके और जो बैक्टीरियाज हैं वो किल हो सके। टू इरेडिकेट द बैक्टीरिया फ्रॉम द चैम्बर्स एंड द वॉल्स। रिपीटेड ब्लड कल्चर आर डन टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग। इस बीच में हमको ब्लड टेस्ट भी करना है, ब्लड कल्चर भी करना है, जिससे हमको पता चल सके कि जो ड्रग हम दे रहे हैं, जो IV एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, उनका इफेक्टिवनेस वो पेशेंट पे है या नहीं है। थर्ड वन इज सर्जिकल रिपेयरमेंट ऑफ द वल्वुलर डिफॉर्मिटी एंड कॉन्जेनाइटल इफेक्ट। इफ पेशेंट हैविंग एनी टाइप ऑफ कॉन्जेनाइटल इफेक्ट और एनी टाइप ऑफ वल्वुलर डिफॉर्मिटी, देन वी विल सर्जिकली रिपेयर इट। Next, provide the nutritional supplement and bed rest because patient having already in weight loss and anorexia. Prevent relapse and recurrent fever and infection by providing the antibiotic and antipyretic infection. Advise the patient to perform the good oral hygiene, avoid the invasive procedure as possible. Prophylactic antibiotic therapies started as soon as possible, and also use the aseptic technique. Next one is nursing management. So first one is monitor the blood pressure, pulse, apical pulse and peripheral pulse. Apical pulse यानी कि जो हार्ट के का जो एपेक्स है, हम उस पे स्टेथोस्कोप की थ्रू की हेल्प से क्या करेंगे, हम एपिकल पल्स लेंगे। एंड पेरिफेरल पल्स जैसे कि रेडियल पल्स हम लेते हैं। नेक्स्ट, मॉनिटर द कार्डियक रिदम एंड फ्रीक्वेंसी। पेशेंट का जो कार्डियक रिदम है वो भी देखेंगे, पेशेंट एरिथमिक तो नहीं हो गया है। स्लीपिंग पोजीशन, पेशेंट को बोलना है कि 45 डिग्री सेल्सियस, दैट इज कॉल्ड सेमी फॉलर पोजीशन। इस पोजीशन में हमको पेशेंट को बोलना है कि आपको ये पोजीशंस में रहना है। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू डू द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, क्विट द इन्वायरमेंट एंड मेडिटेशंस, ऑल्सो डू द मेडिटेशन। Collaboration in providing the oxygen therapy to maintain the patient airway. Energy saving client during the acute phase. Maintain a sleep until the result of laboratory and clinical status approved. जब तक कि लेबोरेटरी के रिजल्ट नहीं आ जाते और पेशेंट का स्टेटस बिल्कुल इम्प्रूव नहीं हो जाता, पेशेंट को मेंटेन करना है स्लीप और साथ ही साथ रेस्ट भी मेंटेन करना है। In line with the better situation, monitor the gradual increase in the level of activity, create a schedule of rest, teach to participate in the other activity that will divert the anxiety and the fear. So this is all about the endocarditis. Thank you.